Okay. So today we are going to discuss about moment of inertia about solid cylinder. Solid cylinder का meaning होता है कि means कि fully occupied or fully made up of metal or anything. So first of all, we will consider here a solid cylinder. This is the radius R of the cylinder, and total height I am considering here L. This is the total height L, and this is the center point O. Now we are going to find out the moment of inertia about its own axis, that is OB, passing through the center like this. This is the axis A. About its own axis. Now, if L is the height and R is the radius, then volume of cylinder हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, because L is the height of the cylinder. Radius I have used here capital R, so I will use capital R only. Now the mass per unit volume of cylinder. Mass per unit volume of cylinder. If M is the total mass, then M over pi R square L. This is the mass per unit volume of the cylinder. Now for my convenience, I know that as it is a solid cylinder, so it consists of large number of small elementary cylinders having same axis. Large number of small elementary cylinders means कि इसके बीच में और भी बहुत सारी लेयर्स होंगी सिलेंडर की, एक्सिस सेम रहेंगे, तो मैं उसी सिलेंडर को यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे कैसे axis would be same. So this is my small cylinder which I have considered, और जो इसका रेडियस है इसका वो है x, और इसकी जो स्मॉल थिकनेस है दैट इज dx. What I will do, if radius is s and thickness is dx, volume elementary cylinder which I have considered here, elementary cylinder, that will be is equal to, we know that the formula for volume, that is 2 pi x dx into L, that is L is the total length, because this axis would come here. So now the mass volume of this elementary cylinder will be 2 pi x dx into L. अब 2 pi x dx क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2 pi x is the radius, right? Curve surface area 2 pi r h होता है सिलेंडर का, 2 pi r h. So here I am using 2 pi r, radius is x, and this is small elementary thickness, that is dx I am using, so 2 pi x dx, और h की जगह पे मेरे पास आ गया l, so that's why it is 2 pi x dx into l. Similarly, mass कितना हो जाएगा, mass of this elementary cylinder, mass of this elementary cylinder would be
इज इक्वल टू m ओवर, अब इसमें क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एल इंटू volume of this, that is 2 pi x dx into L. Pi cancel, L would also cancel, so finally it will become m x dx upon r square, right? 2mx, this is the mass of elementary cylinder. Now what we will do, we have to find out the moment of inertia. क्योंकि मोमेंट ऑफ मास मैंने क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मुझे दो ही क्वांटिटीज की जरूरत होती है, वन इज मास एंड अनदर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मैं डायमीटर या रेडियस लेके निकाल सकता हूं, लेकिन मास नहीं था, तो मास मैंने इसलिए कैलकुलेट किया यहाँ पे, राइट? देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट्री सिलेंडर का, ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर अबाउट, कौन सा एक्सिस है मेरे पास, ए बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2mx dx ओवर आर स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा मास जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था। तो इस एक्सिस से, ये जो एक्सिस है ये रहा ए बी, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x, तो ये कितना आ गया, x। तो ये आ गया मास ऑफ elementary cylinder. So I can write here x square directly, right? Now what I will do, simply I will calculate the moment of inertia of cylinder, full cylinder now, cylinder about AB, एक्सिस वही रहेगा AB, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, that is limit will be 0 to r 2mx square dx upon r square. Now if I will move further for integration, so it will become moment of inertia I would be is equal to 2m r square का कोई रोल नहीं है, इंटीग्रेशन 0 to r, ये हो गया x dx, x square dx। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, सॉरी, एक्स क्यूब बनना था, क्योंकि मल्टीप्लाई हम टेंस का स्क्वायर से करते हैं, तो ये बन गया एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू x power 4 by 4, limits 0 to r. When I will put up the limits, it will become 2m by r square into r power 4 by 4. If I will solve this, so it will become mr square by 2. This is the moment of inertia about solid cylinder about its own axis, right? उसके उसी के एक्सिस पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr square by 2. तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं एक्सिस को हम थोड़ा डायग्राम भी चेंज करेंगे। Now what we will do, about an axis passing through the center of mass, about an axis passing through center of mass, क्योंकि पहले हमने क्या किया था कि वो सेंटर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो भी सेंटर ऑफ मास में ही था, लेकिन इसमें एक चीज और है, एंड परपेंडिकुलर to its length. अब इस केस में हम क्या करेंगे,
इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हमें डायग्राम ही समझनी पड़ेगी। डायग्राम के लिए हमने क्या किया, सिलेंडर को थोड़ा घुमा दिया। पहले हमने वर्टिकली किया था, अब हम इसको हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं। ये है मेरा सिलेंडर, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस, ये एक्सिस था मेरा जो मैंने पहले भी लिया था, ए बी। अब इस पे क्या किया, एक एक्सिस परपेंडिकुलर ले लिया, दैट इज सी डी। ये एक्सिस मेरा परपेंडिकुलर। उसी तरह से सिलेंडर का रेडियस आर है, ये सेंटर पॉइंट है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, उसी तरीके से इसमें भी एक सिलेंडर अज्यूम करूंगा, एलिमेंट्री सिलेंडर, कि इन बिटवीन यहां पे एलिमेंट्री सिलेंडर मैंने अज्यूम किया। उसी तरीके से उसका जो रेडियस है वो क्या हो गया, एक्स। अगर मैं एलिमेंट्री की बात करूं तो ये हो गया एक्स, और इसकी जो थिकनेस है जो हमने लिया वो हो गई एलिमेंट्री की dx, राइट। तो सिमिलरली हम मूव ऑन करेंगे वैसे ही। इफ मास m इज द मास, देयरफॉर मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वही बनेगा सेम, m अपॉन पाई आर स्क्वायर l, क्योंकि l मैंने उसी तरह से इसमें हाइट ली है इसकी, टोटल ये l है। अगर मैं o को ओरिजिन मानूं तो इस तरफ हो गया l/2, क्योंकि ये सेंटर में से है, और ये हो गया -l/2, राइट। तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैंने उसी तरीके से एलिमेंट्री सिलेंडर अज्यूम किया है, देयरफॉर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, एलिमेंट्री सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर would be is equal to pi r square dx. Same way I will move for the mass, because I need the mass of elementary disk जो मेरे पास मैंने निकाली है, that is m over pi r square dx. तो मास आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। अब इसमें एक्सिस, जो मैंने एक्सिस लेना है वो मेरे पास एक्सिस क्या है। अगर मैं किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री डिस्क का निकालता हूं, तो अगर ये एक मेरी डिस्क कंप्लीट होती तो इसका ये एक्सिस होता है ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क कितना हो जाएगा, अगर उसी का एक्सिस लेंगे, डिस्क अबाउट, अगर मैं इसको P क्यों मान लेता हूं, इस डिस्क का जो एक्सिस सेंटर में से होके जा रहा है इस डिस्क में से, तो ये मेरे पास बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क इज m over pi r l square into volume of disk, that is pi r square dx. So r square cancel, pi cancel, so mass would be this, so that will be is equal to 1/4 into m over l into dx. This is the moment of inertia. तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो what result we will get, into perpendicular distance of this from center, तो m/l into dx into r square. तो अब इसको सोल्व करो, दैट मीन्स 1/4 m/l r square into dx. अब हमें पता है कि हमें टोटल रिंग उसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया पी क्यू के अराउंड, लेकिन मुझे निकालना कहाँ है, सी डी पे। तो ये हो गया पी क्यू वाला, अबाउट सी डी। ये मैंने पी क्यू निकाला यहाँ पे, और मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास में से होके जा रही है, तो मैं डायरेक्टली पैरेलल थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली अप्लाई कर सकता हूँ इसमें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट सी डी। अब सी डी के अबाउट अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मेरे पास बनेगी, उसको मैं स्मॉल मान रहा हूं डी आई। एक तो ये हो गया, दैट मीन्स किसके इक्वल होती है, पैरेलल एक्सिस क्या कहती थी कि सेंटर ऑफ मास में से पास आउट होके जाती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इक्वल टू द सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया passing through the center, that is 1/4 into m by l dx m by l dx r square plus moment of inertia about center, that means m by m r square वाला। तो इसका मास कितना था मेरे पास, मास ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर m by pi r square l into r square। मास पर यूनिट वॉल्यूम था, ये था वॉल्यूम। मास ऑफ डिस्क था m by l into dx, m by l dx, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, x स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहती है क्योंकि अब इसमें हम डबल करेंगे काम। तो इसी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिलेंडर का, तो वह वो कैसे आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट सी डी। तो वो आपको पता ही है, हमारे पास इंटीग्रेशन डी आई, इसमें लिमिट्स रहेंगी -l/2 टू +l/2, दैट विल बी -l/2 टू +l/2। अब ये सारी वैल्यू के इंटीग्रेशन लेना है हमें, तो ये है मेरे पास 1/4 इंटू m ओवर l r स्क्वायर इंटू dx प्लस m ओवर l x स्क्वायर dx। अब जो हमारे यूज की टर्म है वो अंदर ही रखेंगे, बाकी हम बाहर लेके जा सकते हैं। जैसे m बाई एल तो दोनों में जरूरत नहीं है, तो m बाई एल मेरे पास बाहर आ जाएगा। इसको सेपरेट करो इंटीग्रेशन में, -l/2 टू l/2, दैट विल बी r स्क्वायर dx तो ये इंटीग्रेशन, तो नाउ इसकी इंटीग्रेशन सेपरेटली करेंगे अब हम, -l/2 टू l/2 1/4 m r स्क्वायर dx by l प्लस इंटीग्रेशन -l/2 टू l/2 m by l x square dx। So when we will do integration, so what we will get, तो फर्स्ट केस में m r स्क्वायर बाई l 4l, इसकी जरूरत नहीं है, बाहर ही आ गया वो। इंटीग्रेशन -l/2 टू l/2 dx प्लस यहाँ भी m ओवर l बाहर आ जाएगा, -l/2 टू l/2 x square dx। Now do the integration, it will become m r square by 4l into x -l/2 to l/2 प्लस m over l, यहाँ पे बन जाएगा x cube by 3 -l/2 to l/2। Now put up the values of the limits, what we will get,
that is moment of inertia would be, अब L by 2 minus of minus L by 2, m r square over 4L into L by 2 minus of minus L by 2, क्योंकि माइनस पहले आएगा और लिमिट में भी माइनस है, प्लस m by L into L by 2 cube plus L by 2 cube, 3 आ जाएगा यहाँ पे. थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा इसमें, you can manage it. So then what we will get, m r square upon 4L into L by 2 plus L by 2, half L plus half L, that will become L, plus L cube by 8 plus L cube by 8, that will become m by 3L into 2L cube by 8. So when I will solve this, it will become L cancel 2 4, that would be m by 4 r square plus m over 12L. L भी cancel हो जाएगा, m over 12 L square. So that is moment of inertia about solid cylinder when passing through the center of mass and perpendicular to its length.